Okay. So the microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, वो इतने छोटे होते हैं साइज में कि उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. ठीक है. Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with magnifying glass. आप फंगस को किससे देख सकते हो? मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो. ठीक है. So others cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called or microorganisms or microbes. इनको हम क्या बोलते हैं? इसलिए माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या माइक्रोब बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. क्योंकि इनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. नहीं देख सकते. So microorganisms are basically classified into 4 groups. Microorganisms कितने ग्रुप में क्लासिफाइड है चिंकू? 4 groups. 4 groups. First group is bacteria. Second group is fungi. Third group protozoa is and algae. And fourth group is algae. Okay. कौन कौन से 4 ग्रुप हो गए? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. वेरी गुड. Then these are the types of bacteria. ठीक है. Your bacteria could be spiral in shape, it could be rod shaped. So this is the picture which is showing the different types of bacteria. Either it is a spiral bacteria or a rod shaped bacteria. So these are the types of algae. ठीक है. These are the examples of algae and it includes Chlamydomonas and Spirogra. Chlamydomonas and Spirogra. Then these are the types of protozoa. These are the types of protozoa. Examples includes amoeba and paramecium. ठीक है. Amoeba and paramecium. And these are the examples of fungi, which includes bread mold, penicillium, and aspergillus. Bread mold, penicillium, and aspergillus. And these are the types of virus. So here it is your phage. It is a phage. इस वायरस का क्या नाम होता है? बैक्टीरियोफाज. क्या नाम होता है इसका? बैक्टीरियोफाज. जो इमेज जिस वायरस की दिखाई है यहाँ पे, इसका नाम होता है बैक्टीरियोफाज. Okay. So our next question is, where do the microorganisms live? Okay. The microorganisms may be single-celled like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as algae and fungi. तो क्या होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म? क्या होता है? सिंगल सेल्ड हो सकता है. सिंगल सेल्ड कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? लाइक बैक्टीरिया. बैक्टीरिया इज अ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया इज अ single celled microorganism, whereas the algae and protozoa are algae and protozoa are also single celled microorganisms. Many algae and protozoa are also single celled microorganism. Then they can be multicellular also. Then these microorganisms could be multicellular also. Multicellular. Yes. So which microorganisms are multicellular? It includes algae and fungi. It includes algae and fungi. So they can survive under all types of environment, ranging from ice cold climate to hot springs.
ठीक है, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy land. मार्शलैंड। इनके जो हैबिटेट निच जो होती है, इनकी निच, वेयर डू दे लिव, ठीक है, तो इनकी जो हैबिटेट होती है इट इज रेंजिंग फ्रॉम द आइस कोल्ड क्लाइमेट, जहाँ पे आइस होती है, जैसे ग्लेशियर्स हो गए, ग्लेशियर्स जहाँ पे होते हैं वहां पे क्या होती है, वहां पे आइस होती है ना, और आइस कोल्ड होता है एनवायरमेंट। फिर आपके दूसरे होते हैं हॉट स्प्रिंग्स, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ, सल्फर हॉट स्प्रिंग्स। एक एग्जांपल किसका दिया मैंने, सल्फर हॉट स्प्रिंग, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट होते हैं तुम्हारे, जैसे रेगिस्तान हो गया, जैसे राजस्थान हो गया, जहाँ पे केवल रेत होती है और बहुत गर्मी होती है दिन में और रात को बहुत ठंडी होती है, डेजर्ट्स में, है ना, वहां पे भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। और टू मार्शी लैंड, और मार्शी लैंड में भी क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। मार्शी लैंड में भी हमारे क्या रहते हैं, माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म। रहते हैं। सो दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स लाइक इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ह्यूमन एनिमल्स की बॉडी पे और उनकी बॉडी के अंदर दोनों जगह पाए जाते हैं, ठीक है। हमारा जो गट लाइन है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरी गट लाइन में हमारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जो हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट है, पूरी जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, उस यूरिनरी ट्रैक्ट में भी क्या है, एक माइक्रो फ्लोरा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और हमारी जो स्किन होती है, हमारे स्किन पे भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हमारी स्किन पे भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करते हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो कर रहा है, या फिर जो बैक्टीरिया है वो हमारे ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे स्किन पे हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना, हेल्दी बैक्टीरिया बोलते हैं जिनको। कर्ड खाते हैं, कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है, फ्रेंडली। फ्रेंडली। फ्रेंडली तो होता है, लेकिन नाम क्या है उसका, और लैक्टोबैसिलस, क्या बोलते हैं उसको, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस जैसे कि हमारे उसमें होता है, इकोलाई हो गया, ये सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे हेल्दी गट में या हमारे स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं, एक तरीके से ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ्री होते हैं, फ्रीली सरवाइव करते हैं, उनको किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, यानी कि उस दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक तरीके से वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। हाँ, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड नहीं करते। नहीं रहते। ये तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। अमीबा क्या है, अकेला रह सकता है, ठीक है। वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज, जबकि जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं वो किस में रहते हैं, कॉलोनीज में। कॉलोनीज। उनको एक दूसरे बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है, समझ गए। हाँ। उसके बाद आते हैं हमारे फर्स्ट कैटेगरी, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, हम पढ़ते हैं उसके बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। जो आपकी कर्ड होती है वो कर्ड में कैसे कन्वर्ट होती है, मिल्क से,
मिल्क से वो एक हार्ड टेक्सचर कैसे, सेमी सॉलिड टेक्सचर कैसे गेन करती है? मिल्क तो पूरा लिक्विड होता है, लेकिन कर्ड कैसी होती है? कर्ड हल्की सी कैसी होती है? सेमी सॉलिड होती है एज कम्पेयर टू मिल्क, सॉलिड होता है। है ना? तो उस कर्ड को बनाने में, या जो तुम ब्रेड होता है उस ब्रेड में ऐसे स्पॉन्जीनेस कैसे आती है, केक में स्पॉन्जीनेस कैसे आती है? तो ये सारी जो फ्रेंडली प्रोसेसेस होती माइक्रो। हैं, ये सारी प्रोसेसेस होती हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सराउंडिंग. इट हैपेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दैट सराउंडिंग. तो सराउंडिंग। वो क्या करता है, वो केमिकल चेंजेस करता है, जिसकी वजह से हमारे ये सारे के सारे फूड मटेरियल बन के तैयार होते हैं, इंक्लूडिंग योर कर्ड, ब्रेड एंड cake. And there are also several examples which you can read about the friendly microorganisms. Okay, so they are also used in cleaning up of the environment. ये environment की cleaning के लिए भी यूज होते हैं, जो friendly microorganisms होते हैं. ठीक है बेटा? For example, the organic waste, vegetable peels, remains of animals, feces, etc. ये जो है ये ऑर्गेनिक वेस्ट आप में आता है. क्या क्या आता है ऑर्गेनिक वेस्ट में? वेजिटेबल पील, एनिमल रिमेन्स रिमेन्स, ऑफ एनिमल, फीसेस एंड एक्सेट्रा। एंड मैनी मोर. ठीक है? दे आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया। दिस ऑर्गेनिक वेस्ट विल बी ब्रोकन and it is harmless and it is in the form of usable from other organisms. ठीक है? And bacteria are also used in the preparation of medicines. कौन सी मेडिसिन में बैक्टीरिया होता है चिंकू? है कौन सी मेडिसिन में बैक्टीरिया होता है? पैरासीटामोल। ट्राई कर दूंगी मैं. प्रोबायोटिक नहीं खाते? यही प्रोबायोटिक क्या होती है? प्रोबायोटिक क्या होती है? याकुल्ट नहीं सुना? याकुल्ट इतने छोटे छोटे हाँ मिलते हाँ हैं, हाँ 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 उसका हाँ बोलते हैं हाँ खाली पेट पीना चाहिए रोज सवेरे. हाँ हाँ। तो वो एक तरीके की मेडिसिन ही तो होती है. नेचुरल प्रोबायोटिक जो होती है उसमें हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं. उसमें क्या होते हैं? हेल्दी बैक्टीरिया। हेल्दी बैक्टीरिया. ठीक है? so this is the example where bacteria are used in the preparation of medicine. ठीक है? उसके बाद पेनिसिलिन आती है, एक एंटीबायोटिक. वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स से ही जनरेट होती है. पेनिसिलिन भी कहाँ से जनरेट होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिक्रीट करता है उसको. ठीक है? So in agriculture they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है? है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया।